Welcome back, champions. So children, in today's class we will continue with the same chapter, that is change in profit sharing ratio among existing partners, and I hope you all have understood the concept of gaining ratio, right? So in today's class we'll learn about the new topic, that is sacrificing ratio, and how to calculate sacrificing ratio, what is sacrificing ratio. But before proceeding further, we will have a quick revision of what we did in the previous class, that is gaining ratio. Okay, right? So Ayush, can you tell me what is gaining ratio? Okay, yeah, yes, Ayush is saying gaining ratio is new ratio minus old ratio. Very good, Ayush, sit down. Okay, Pragati, can you give me one example of gaining share? uh, yes, be loud, I can't hear you, be audible. Okay, very good. Pragati, sit down. Now what she said, Pragati is saying, yesterday my mom gave me 50 rupees as pocket money and today morning she gave me 70 rupees. So I have gained 20 rupees, right? So this is very good example. Very good, Pragati. So this means that you all have understood the concept of gaining ratio. Now we'll start with sacrificing ratio. Now what is sacrificing ratio, or what is sacrificing share? First we will discuss that. Like, we will continue with the same example. Like Pragati said, yesterday her mom gave her 50 rupees as pocket money and in the morning she gave her 70 rupees. Now we will reverse the situation, right? For example, yesterday Pragati's mom, she gave her 70 rupees as pocket money and today morning she gave her 50 rupees. क्या हुआ यहाँ पे? कल हमें मिला 70 रुपीज पॉकेट मनी, आज मॉर्निंग में मम्मी के पास चेंज नहीं था, शी गेव मी 50 रुपीज. दैट मीन्स प्रगति ने क्या किया, 20 रुपीज सेक्रीफाइस किया. यहाँ पे 20 रुपीज उसने लेस रिसीव किया मम्मी से एज अ पॉकेट मनी. सो दिस इज सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ प्रगति, राइट? उसने 20 रुपीज लेस जो है रिसीव किया. So अब इसको हम through question, through example we will understand. Again we will continue with new example to understand the concept of sacrificing ratio, right? So example number 4, A, B, C are partners. Old ratio is 5:4:1. New ratio is given as 2:5:3. I hope you all have done enough examples from this topic gaining ratio, right? मुझे सब चेक करना है. नेक्स्ट वीक आई विल चेक योर नोटबुक्स ऑल्सो, राइट? तो अभी हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कंटिन्यू करते हैं. सो ए बी सी पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो इज गिवन एज 5:4:1. न्यू रेशियो इज 2:5:3. कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो. नाउ अगेन वी विल हैव सेम फॉर्मेट. सॉल्यूशन, we will write partners, then we will write old ratio. I hope board is visible to everyone. Partners, old ratio, then we will write new ratio. And what we have to calculate here, it's very specific that we have to calculate sacrificing ratio. So we will write sacrificing रेशो, राइट? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, गेनिंग रेशो में हमने क्या किया था, अगर तुम लोगों को याद हो? न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. न्यू शेयर हमारा ज़्यादा था, राइट? वेयर एज सेक्रीफाइसिंग रेशो में हमारा जो अब आज को जो हमें प्रेजेंट में मिला है वो कम मिला है, राइट? तो जब हम यहाँ पे फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा. हमने जो गेनिंग में किया था न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, ओल्ड रेशो माइनस, यहाँ पे आप लोग लिख लो न्यू शेयर भी लिख सकते हो, रेशो भी लिख सकते हो. सो यू विल राइट रेशो, राइट? सो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ये हमारा फॉर्मेट इज रेडी. नाउ विल स्टार्ट. ओल्ड रेशो इज पहले, फर्स्ट वी विल राइट द नेम ऑफ द पार्टनर्स, ए, देन गैप, then C. Now old is 5 plus 4 9, 9 plus 1 10. So 5/10. Then 4/10 for B and 1/10 for C. New ratio is given as 2 plus 5 7.
7 plus 3, 10. So 10, 2 upon 10. For B it's 5 upon 10 and for C it is 3 upon 10. I hope यहाँ तक सबको क्लियर है. अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं. फॉर्मूला इज गिवन. हमने यहाँ पे समझ लिया कि कैसे फॉर्मूला आया. जो हमारा बड़ा अमाउंट है, राइट, हम जो हमने गेनिंग रेशो में किया था, जो हमने फॉर एग्जांपल 50 से 70 हमारी पॉकेट मनी हो गई, तो हमने 70 माइनस 50 किया था, तो हमें पता चला कि हमने 20 रुपीज़ का गेन किया था. वेयर इन केस ऑफ सेक्रीफाइसिंग हमने क्या बोला कि हमें कल पॉकेट मनी मिली थी 70, आज मिली है 50. अगेन हमने बड़े अमाउंट में से छोटा अमाउंट माइनस किया, तो हमें पता चला 20 रुपीज़ हमने सेक्रीफाइस किया है. सेम वे आपको यहाँ भी यही करना है. आपको ओल्ड में से न्यू माइनस करना है, मतलब हमेशा आप बड़े में से छोटा अमाउंट को माइनस करोगे, राइट. सो अगेन वी विल टेक एलसीएम. ये यहाँ पे आ रहा है, राइट. सो एलसीएम अगेन 10 आ गया. 5 minus 2, this comes to 3 upon 10, right. Then again यहाँ पे देखते हैं B का कितना आया, 4 minus 5. See, अब यहाँ पे 4 minus 5 means नेगेटिव आ गया. यहाँ पे अपोजिट होगा, जैसे हमने गेनिंग में किया था सेम यहाँ पे भी होगा. जो पॉजिटिव है वो आपका क्या चल रहा है, सेक्रीफाइस. यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, और जो माइनस में आया दैट इज गेन, राइट. अगेन we will take LCM. C के केस में 1 minus 3, this comes to minus 2 upon 10. Again C is also gaining. अब देखो, gaining share is always equal to your sacrificing share. वही चीज हो रही है यहाँ पे. A ने जो है total sacrifice 3 upon 10 and total gain कितना हुआ आपका, माइनस 1 अपॉन 10 और प्लस 2 अपॉन 10. तो आपका देखो वही आया 3 अपॉन 10. तो आपका टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन. आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर. हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया, हम सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं कि कितना सेक्रीफाइस किया, कितना कम मिला हमें, राइट. उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा ओल्ड शेयर कितना था और न्यू शेयर कितना हुआ, कितने से हमने कम रिसीव किया है, राइट. तो ओल्ड आपको रेशो इज गिवन इन द क्वेश्चन, न्यू रेशो इज आल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. हमने क्या किया, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो कर दिया, राइट. हमने ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो किया. ये इंडिविजुअल पार्टनर्स का गेन और सेक्रीफाइस आपका कैलकुलेट आप कर लोगे यहाँ पे. तो आप देख लो, टोटल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू टोटल गेन. हमने क्रॉस चेक भी कर लिया और ये बिल्कुल करेक्ट है. आई होप कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज वी विल डू नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो सेकेंड एग्जाम्पल, हरिंदर वाई यू आर नॉट राइटिंग, पेन खत्म हो गया है. यू शुड हैव आस्क्ड मी ना देन. टेक दिस पेन एंड स्टार्ट राइटिंग एंड यू हैव टू शो मी योर वर्क आफ्टर द क्लास. ओके हरिंदर, टेक दिस पेन. सो एग्जाम्पल नंबर 5, पार्टनर्स PQR. Old ratio is given as 2:2:1. New ratio is given as 1:1:1. That means equal ratio. Partners are PQR. 3 partners are there. Calculate sacrificing ratio. So we'll start solution. We will write partners P space Q space R. Then we will write what we will write, Ravi. Old ratio. Yes, very good. Old ratio. Old ratio is Mihir. What is the old ratio of P? 2 upon 5. Very good. 2 upon 5. Mebin, what is the old ratio of Q? 2 upon 5. Very good, Mebin. Sit down. R is 1 upon 5. Right? Now what we will write, Ankit? New ratio. Yes, new ratio. New ratio. Yes, Bhumi, tell me the new ratio of P. 1 upon 3. That's correct. 1 upon 3. Sit down, Bhumi. And new ratio of Q, Sakshi, 1 upon 3. Yes, 1 upon 3. Soumya, tell me the new ratio of R. 1 upon 3. Very good. Sit down. Now, what we will do? What is the next step? Aisha, what is the next step? What we will do? What should I write here? Sacrificing ratio. Very good.
Sit down, Asha. Sacrificing ratio. Okay. Yes, Priyanka, tell me the formula. What should I write here? Sacrificing ratio is equal to old ratio. Yes, old ratio minus new ratio. Good, Priyanka. Okay, sit down. Now, what we have to do? We will minus old ratio minus new ratio. So 2 upon 5 minus 1 upon 3. Then 2 upon 5 minus 1 upon 3. 1 upon 5 minus 1 upon 3. Now we'll solve this. 5, 3 we have to take same denominator. LCM ले लेंगे. 15 आ गया. 5 3 जा 3 2 जा 6. 3 5 जा 5 1 जा 5 5. So 1 upon 15. Same way we will calculate for Q. LCM 15, denominator is 15. 5 3 जा 3 2 जा 6. Same 5 is equal to 1 upon 15. Same आ गया इसका भी. Now let's see R का क्या आता है. 15 ले लिया denominator. 5 3 जा. So 3 minus 3 5 जा. So 3 minus 5 comes to minus 2 upon 15. अपोजिट है, सेक्रीफाइसिंग निकाल रहे हैं. जो पॉजिटिव आएगा वो आपका सेक्रीफाइस हो गया, एंड जो नेगेटिव आया दैट इज गेन. राइट. सो सी यहाँ पे भी वही चीज हो गई. टोटल सेक्रीफाइस कितना आया? minus 2 upon 15. एंड टोटल गेन 1 upon 15 plus 1 upon 15 comes to 2 upon 15. So total sacrifice is equal to total gain. I hope this is clear. इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करो and note this down in your notebook. 2 upon 15. Oh, this is total. Sorry. Just correct this. Total gain and this is total sacrifice. Right? तो ये देख लो, इसको लिख लो, नोट कर लो. Now children will start the new topic, that is new ratio. New ratio. So we are done with the gaining ratio and sacrificing ratio. What you all have to do, you have to practice the questions. And अब जो है ये जो टॉपिक है न्यू रेशो, इसकी जो क्वेश्चंस होंगे दैट ऑल्सो यू नीड टू प्रैक्टिस. स्कैनर से करो, बुक से करो, बट करना है. राइट. सो न्यू रेशो, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ न्यू रेशो. लेट्स टेक वन एग्जांपल. Ishika, Ananya and Diksha, one day na they all went to park, and while entering the park, Ishika, she saw ₹500 note lying near the gate. और वो इतनी खुश हुई इसलिए उछलना शुरू कर दिया. अब जो ही 500 रुपीज़ थे, बिकॉज इशिका, अनन्या, दीक्षा, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स. तो इशिका ने क्या सोचा कि चलो हम लोग इसको आपस में वी विल डिस्ट्रीब्यूट द मनी, वी विल शेयर दिस मनी. तो इशिका ने क्या किया, आई विल राइट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो इशिका, अनन्या एंड दीक्षा. राइट. सो इनको जो है इनका 500 रुपीज़ मिले. 500 रुपीज़ में से इशिका took 200 rupees. अनन्या को she gave 150 rupees. अब कितना बचा बैलेंस? 150. तो दीक्षा को भी 150 दे दिया. अभी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ. अनन्या जो है थोड़ी सी नोटोरियस है, तो उसको क्या हुआ कि मुझे 150 क्यों दिया है. दीक्षा इज वेरी सोबर एंड सिंपल, उसने कुछ नहीं बोला. बट जो अनन्या है उसने बोला मुझे तो 50 रुपीज़ और चाहिए. तो इशिका को लगा चलो मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं इसको 50 रुपीज़ और दे देती हूँ. नाउ सी, इशिका ने क्या किया, अपने में से 50 रुपीज़ माइनस किए और अनन्या को 50 रुपीज़ दे दिए. राइट. टोटल 500 इशिका को मिला. 500 में से 200 इशिका ने अपने पास रखा. 150 रुपीज़ शी गेव टू अनन्या एंड बैलेंस 150 टू दीक्षा. बट अनन्या जो थी थोड़ी सी शैतान है, तो उसने क्या बोला कि नहीं मुझे तो 50 रुपीज़ और चाहिए. तो इशिका ने क्या किया, अपने में से अपने 200 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ जो है वो दे दिए अनन्या को. अब मुझे यहाँ पे ये बताओ, इशिका जो है शी इज सेक्रीफाइसिंग और शी इज गेनिंग? करेक्ट, शी इज सेक्रीफाइसिंग. कितना? 50 रुपीज़. तो उसने यहाँ पे 50 रुपीज़ जो है वो सेक्रीफाइस किया है. एंड व्हाट अबाउट अनन्या? अनन्या ने 50 रुपीज़ यहाँ पे
गेन कर लिया है, राइट। एंड दीक्षा का क्या हुआ, नो चेंज, राइट। दीक्षा का कोई चेंज नहीं हुआ, सेम 150 एज इट इज उसका रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि अब जो है इशिका के पास कितना जो है शेयर बचा, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू शेयर, राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू शेयर। So new share of Ishika will be 200 minus 50, that comes to 150 rupees. अनन्या का कितना हुआ, 150 plus 50, total comes to 200 rupees. And दीक्षा same 150 rupees. तो ये इनका new share बन गया. So we can say that new share equals to old share. This is old, right? So old share minus sacrificing share, right? Or we can say that new share is old share plus जो अनन्या के केस में हुआ, ये जो केस हुआ ये इशिका का केस है, और जो अभी मैं लिख रही हूँ ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर, ये भी आपका न्यू शेयर आपको बता देता है। सो वी कैन से दैट न्यू रेशो भी लिख सकते हो आप इसको, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, राइट। वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, न्यू रेशो ओल्ड रेशो प्लस sacrificing ratio, right? New ratio is equal to old ratio plus gaining ratio. I hope this is clear. Now we will do one or two more examples to understand this concept. If you have any doubt, let me know. Ma'am, yes, Aman. Ma'am, यहाँ पे minus आएगा. Where? Okay, old ratio minus. Okay. Yes, this is old ratio minus sacrificing ratio. Good job, Aman. So now, example number 6 from the topic new ratio. PQR are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. R acquires 1/5 share from P. Calculate new ratio. I repeat this line. R acquires 1/5 share from P. Means R ने यहाँ पे क्या किया? R ने यहाँ पे क्या किया? गेन किया कि सैक्रिफाइस किया? Obviously R ने यहाँ पे गेन किया, राइट, एंड P ने क्या किया? यहाँ पे सैक्रिफाइस किया. R acquire 1/5 शेयर फ्रॉम P, मतलब P से उसने 1/5 शेयर लिया. अब तुम लोग एक चीज ध्यान रखना, whenever in the question it is written from, अगर क्वेश्चन में आपका from लिखा हुआ है, यहाँ तो from होगा या आपका off लिखा होगा. अगर from लिखा हुआ है that means it's very clear कि आपने उतना स्पेसिफिक पर्टिकुलर शेयर उस पार्टनर से लिया है, राइट. बट व्हेन इट इज ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे लिखा होता आर एक्वायर 1/5 शेयर ऑफ पीस शेयर, मीन्स हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना होता है उस केस में? जब ऑफ लिखा होता है तो आप ये अभी लिख लो कहीं पे नोट में, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. ऑफ के केस में आपको मल्टीप्लाई करना होता है और फ्रॉम के केस में आपको माइनस करना होता है. ये कहीं नोट पे आप इंपॉर्टेंट नोट में अपनी नोटबुक में यू कैन नोट दिस डाउन. फ्रॉम जब होगा क्वेश्चन में आपको माइनस करना है शेयर, और जब ऑफ लिखा होगा क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई करना है, राइट. सो नाउ इन दिस क्वेश्चन आर एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम पी, राइट. यहाँ पे फ्रॉम है तो आर गेन कर रहा है एंड पी इज सेक्रीफाइसिंग. सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. वी विल राइट पार्टनर्स पी space Q space R. Then we will write old ratio. Old ratio is 2 plus 2 4, 4 plus 1 5, right. So 2 upon 5. For Q also 2 upon 5, and for R 1 upon
5, राइट। नाउ अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेक्रीफाइस हुआ वो कितने का हुआ है, 1/5 का हुआ है। किसने किया, P ने किया है। तो P यहाँ पे क्या कर रहा है, 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं 1/5 सेक्रीफाइस कर लिया। एंड गेन कौन कर रहा है, R। Q का कुछ नहीं है, सो नो चेंज, नो चेंज। R is gaining how much, 1/5। R ने यहाँ पे क्या किया, गेन कर लिया, राइट। अब हमको क्या करना है, न्यू रेशो चाहिए। सो वी विल राइट न्यू रेशो। न्यू रेशो अगेन फॉर्मूला इज, क्या फॉर्मूला है, एनीबडी, कौन बताएगा मुझे। न्यू शेयर अगर निकालना है तो कैसे निकलेगा, ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग है, ऑब्वियसली जब मैंने अपने में से 50 रुपीज दे दिए किसी को तो मेरा शेयर कम हुआ है, माइनस हुआ है। तो 2/5 माइनस 1/5, राइट। तो कितना आ गया, आपने डिनोमिनेटर जो है सेम ले लिया, 5, 2 - 1, यहाँ पे आपका आ गया 1, राइट। यहाँ पे आते हैं Q में, नो चेंज, तो यहाँ पे आपका 2/5 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे R में देखो 1 + 5, 1/5 + 1/5 हो जाएगा क्योंकि मिला है उसको। सो 1/5 + 1/5 कम्स टू 2/5। तो अब आपकी जो न्यू रेशो क्या बनी, देयरफॉर न्यू रेशो कितनी हुई आपकी, 1/5 is to 2/5 is to 2/5, or we can write 1 is to 2 is to 2। तो ये हम आपकी आ गई न्यू रेशो। इसको नोट डाउन करो जल्दी से, और कुछ डाउट है तो पूछो कैसे हुआ। यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे सिर्फ हमने जो सेक्रीफाइस था उस पार्टनर के शेयर में से माइनस कर दिया, और जिसको मिला, R को मिला, वहां पे हमने उसको ऐड कर दिया। तो उसके बाद जब माइनस किया तो उसका न्यू शेयर आ गया P का 1/5। Q के केस में देयर इज नो चेंज, सो 2/5। इन केस ऑफ R उसको मिला है, ऑब्वियसली उसका शेयर चेंज हो रहा है, 1/5 + 1/5 दैट कम्स टू 2/5। सो आवर न्यू रेशो इज 1:2:2 ratio. Now example number 7 children, E, F, G are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. This is their old ratio. F acquire 2/10 share from E. F acquire 2/10 share from E means E यहाँ पे क्या कर रहा है, E is sacrificing, यहाँ पे जो है E sacrifice कर रहा है, and F is gaining, right, and 1/10 share from G. So again G is also sacrificing. अब यहाँ पे हुआ क्या है, इशिका को 500 मिले थे, इशिका ने जो है 50 रुपीज अपने सेक्रीफाइस किए थे और उसने अनन्या को दिए थे। बट इस केस में क्या हुआ, दीक्षा ने भी क्या किया, जो टोटल 50 रुपीज था, 25 रुपीज इंस्टेड ऑफ 50 रुपीज इशिका देगी, इशिका ने 25 रुपीज सेक्रीफाइस किए और 25 रुपीज जो है वो दीक्षा ने सेक्रीफाइस करे। मतलब दो पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और एक पार्टनर को गेन हो रहा है। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। partners then old ratio, right? So partners are E space F space G. Old ratio 4 + 3 7, 7 + 3 10. So 4/10, 3/10, 3/10. अब मुझे बताओ कि जो है 2/10 जो है ये कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, E सेक्रीफाइस कर रहा है, राइट। सो 2/10 जो है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये इसके शेयर में से क्या करेंगे, माइनस, राइट। एंड G इज सेक्रीफाइसिंग 1/10, तो ये 1/10 यहाँ से माइनस होगा G के शेयर में से। एंड व्हाट अबाउट F, F जो है वो 2/10 + 1/10, जो ये दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो गेन किसका हो रहा है, F का, तो F में ऐड हो जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ F। द
का जो गेन हुआ है, एफ गेन कितना हुआ 2/10, क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, 2/10 प्लस 1/10, तो टोटल 3/10। तो टोटल गेन जो हुआ है एफ का वो हुआ है 3/10। कैसे आया 3/10? 3/10 हमने क्या किया, यहाँ पे वर्किंग नोट दिखा दिया। एफ गेन इज इक्वल टू 2/10 जो ई ने सेक्रीफाइस किया, and G has sacrificed 1/10, so 2/10 plus 1/10 comes to 3/10, that is the gain of F partner. Now इसका हम लोग न्यू शेयर निकालते हैं, न्यू शेयर और न्यू रेशो, राइट, और रेशो और शेयर कुछ भी लिख सकते हो, न्यू शेयर और रेशो। नाउ F E का कितना है 4/10, I will draw one line, 4/10 माइनस कितना सेक्रीफाइस किया 2/10 ई ने जो किया, सो 10 डिनोमिनेटर, 4 माइनस 2 कम्स टू 2, तो ये आ गया नया शेयर किसका, ई पार्टनर का। देन कम्स टू एफ का ओल्ड रेशो इज 3/10, कितना और मिल गया उसको दोनों से, ई एंड जी से, टोटल मिला 3/10, सो दिस कम्स टू 6/10। नाउ जी का ओल्ड इज 3/10, कितना दिया जी ने अपना 1/10, so minus 1/10, this comes to 2/10। तो ये आपका क्या आ गया, न्यू शेयर ऑफ ई एफ एंड जी। अब इसका जो रेशो बना आपका, न्यू प्रॉफिट, एनपीएसआर भी बोल सकते हैं इसको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ई एफ एंड जी, कितना आ गया आपका, I hope this board is visible, 2:6:2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और 2 के मल्टीपल है सारे, so 1 3:1, ये आपका न्यू रेशो आ गई 1:3:1। मैंने इसको क्या किया, फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, 2 से मल्टीपल सब हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2, 2 3 एंड 2 1। तो जब नेचर सेम है आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, राइट। अगेन एक बार देख लो, 3 पार्टनर्स आर देयर, F acquired 2/10 share from E and 1/10 share from G. कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ई जो पार्टनर है, ओल्ड रेशो दी हुई है उसकी, उसने जितना सेक्रीफाइस किया, कितना सेक्रीफाइस किया ई ने, ई हैज सेक्रीफाइस 2/10, तो 2/10 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, राइट। एंड सेम विद जी हैज सेक्रीफाइस कितना किया 1/10, तो 1/10 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ये जो है 2/10 जो इसने सेक्रीफाइस किया एंड 1/10 जो इसने सेक्रीफाइस किया, इन दोनों को मिलाकर ये जो है आपका गेन बन जाएगा किसका, एफ का। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर। अगर यहाँ तक समझ में आ गया दैट मीन्स कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं। एंड कीप इन माइंड चिल्ड्रन, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में है, ये आपके पूरी पार्टनरशिप में थ्रू आउट चलेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। दैट इज वाई मैं बुक का भी क्वेश्चन कोई नहीं कर रही हूँ, ये सब एग्जाम्पल्स में क्यों करा रही हूँ, ये बुक के एग्जाम्पल्स भी नहीं है, बट मैं इसलिए करा रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। एंड वॉट यू ऑल हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो बुक के अंदर टीएस ग्रेवाल के अंदर जो क्वेश्चन है हमारे, वो आपको सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं, प्लस all these examples, question number 1, example number 1 till example number 7, right। मुझे सारे जो जितने भी मैंने examples कराए हैं, प्लस question number 1 to 4 में 4 cases are there, along with those 4 cases सारे questions आपको notebook में करने हैं। next week I am going to check your notebook, clear। now we'll take one more question नंबर 4 में एक लास्ट केस जो है केस नंबर डी, वो मैं आपको बोर्ड पे करा रही हूँ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड पार्ट्स यू आर गोइंग टू डू ऑन योर ओन विद दीज एग्जांपल। एग्जांपल नंबर आई एम रिपीटिंग, एग्जांपल नंबर 1 टिल एग्जांपल नंबर 7, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम योर बुक टीएस ग्रेवाल पार्ट डी। A, B, C are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:4:1. Calculate NPSR means new profit sharing ratio. I repeat, NPSR means stands for new profit sharing ratio. So D part is, as per new agreement, C acquires 1/10 share of, now see, it's written of A and 1/2 share of
B, यहाँ पे आपका ऑफ आ गया। इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में करना पड़ेगा क्वेश्चन को। सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। वी विल राइट partners A, then gap B, gap C. Then we will write old ratio. Old ratio is 5 plus 4, 9, 9 plus 1, 10. So 5 upon 10. For B it's 4 upon 10 and for C it's 1 upon 10. Right? Now as per the new agreement, C acquires 1/10 share of A. हमको नहीं पता कितना शेयर जो है वो लिया है, हमें ये बोल दिया कि 1/10 जो है वो उसने A का शेयर लिया है। अब वो निकालना पड़ेगा, A का पहले शेयर निकालना पड़ेगा और सेम वे हमको जो है B का भी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले शेयर निकाल लेते हैं, राइट, देन वी विल डू द कैलकुलेशन। A is sacrifice, राइट, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना किया, 1/10 शेयर ऑफ ए। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए का ओरिजिनल जो ओल्ड रेशियो है वो लिखनी पड़ेगी, दैट इज 5 upon 10, 1/10 शेयर ऑफ ए। तो 1/10 जो है हमें इसका निकालना पड़ेगा, कितना आपका आ गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 5 upon 20, सॉरी 1 upon 20, ठीक है। So 1 upon 20 A sacrifice. Same way we will calculate for B also. B's sacrifice. B का कितना शेयर है ओरिजिनल, 4 upon 10, कितना दिया B ने दे दिया अपना हाफ, मीन्स हाफ शेयर ऑफ B। हाफ शेयर ऑफ B मतलब कितना हो गया, इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर सेम चाहिए, तो हम लोग इसको 4 upon 20 ही लिख देते हैं। अब A का जो सेक्रीफाइस है वो आ गया 1 upon 20, B का जो सेक्रीफाइस है दैट इज 4 upon 20। आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या होता है ये वाला पार्ट है जब आपको ऑफ लिखा हो। एक बार क्वेश्चन समझ लो फिर से। एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ A। C एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ A। ऑफ का मतलब आपका आ गया मल्टीप्लाई, एंड हाफ शेयर ऑफ B, तो हाफ शेयर ऑफ B, इसका हाफ लिया, इसका कितना लिया, 1/10 लिया, राइट। तो ये आपका आ गया 1 upon 20, सेक्रीफाइस कितना किया, A ने किया, एंड B सेक्रीफाइस इज 4 upon 20। तो आप क्या करेंगे, वी विल राइट न्यू रेशो और न्यू शेयर, राइट। सो 5 upon 10 माइनस 1 upon 20, देन 4 upon 10 माइनस B का कितना सेक्रीफाइस है, 4 upon 20। C के केस में क्या हो जाएगा, जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जो इनका सेक्रीफाइस हुआ है 1 upon 2 और ये आपका जो हुआ है 1 upon 10, ये जो है इसका गेन बन जाएगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, हम लोग ले लेते हैं 20, 2 5 10, 1 आ गया, आपका आ गया 9 upon 20, राइट। सेम वे आप इसका ले लो 20, 10 2 2 4 8 माइनस 20 1 सेम आ गया 4, तो आपका कितना आ गया 4 upon 20। अब हम लोग सेम वे इसका निकाल लेते हैं C का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, होप तुम लोगों को क्लियर होगा। ये वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट। तो C का जो गेन है, मैं यहाँ पे गेन निकाल रही हूँ, गेन C गेन कितना आपका आ गया 1 upon 20 प्लस 4 upon 20, राइट। कैसे आया ये, जो ये था 1 upon 20 और 4 upon 20, इसको हमने टोटल कर दिया, तो ये आपका आ गया 5 upon 20। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ए है सेक्रीफाइस्ड 1 upon 20 एंड बी है सेक्रीफाइस्ड 4 upon 20। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो सी का गेन हो जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा दिया, राइट। सी का जो गेन है। नाउ वी विल कैलकुलेट सी शेयर्स। 1 upon 10 प्लस टोटल कितना है 5 upon 20। सेम वे डिनोमिनेटर 20, 10 2 आ गया प्लस 20 1 तो यहाँ पे 5 भी आ गया, तो आपका आ गया 7 upon 20। सो न्यू रेशो, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी आ गई, 9:4।
4:7. This is our new profit sharing ratio, right? 9:4:7 is our new profit sharing ratio. एक बार से दोबारा समझ लो. C acquires 1/10 share of A. 1/10 share मतलब हमने क्या करना है, हमें पहले उसका शेयर निकालना है. 1/10 ऑफ है, हमें नहीं मालूम कितना शेयर A का जो है वो सेक्रीफाइस वो कर रहा है, तो हमने 1/10 पहले उसका निकाला, 1/20 आया. देन B का हमने निकाला हाफ शेयर ऑफ 4/10, दैट कम्स टू 4/20. देन व्हाट वी डिड, वी सब्ट्रैक्टेड A sacrifice from his original share, that is 5/10 minus 1/20. Same way we did for B also, 4/10 minus 4/20, that comes to 4/20. Then C original share was 1/10 और 5 plus 20 he gained from A and B, तो हमने उसके शेयर में ऐड कर दिया. 20 हमारा डिनोमिनेटर आया है, 10 2 आ गया, प्लस 20 1 1 5 आ गया. तो 9:4:7 आपकी न्यू रेशो आ गई है. सो विद दिस चिल्ड्रन, आई होप तुम लोग नोट कर लो पहले इसको, राइट? यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक. एंड आई होप आज जो भी हमने किया है द टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. बट what you have to do, only practice and practice. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना डाउट्स क्लियर होंगे. एंड फॉर रिवीजन व्हाट आई सजेस्ट, जब एक चैप्टर खत्म होता है, ऐसा नहीं कि आपको वेट करना है उसके लिए. जब चैप्टर खत्म होता है या इनफैक्ट टॉपिक जब हम खत्म करते हैं, तो आपको क्या करना है, एक टफ क्वेश्चन, एक एवरेज क्वेश्चन, एक इजी क्वेश्चन आप लो और उनको प्रैक्टिस करो. इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम पे, जो लास्ट मोमेंट पे बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि आप जो है फ्लो में रहोगे. और बाकी तो आप पेजेस टर्न करो, आप लोगों को क्लियर लेगा. और जो नोट्स मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो अपना रजिस्टर मेंटेन करो, राइट? एंड अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग गुडविल लेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू spread love and peace and practice. Okay, chalo, take care, bye.